डॉक्टर दीप्ति माला अग्रवाल जी, जो कि आगरा की जानी मानी क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं, उपस्थित हैं और अगले कुछ समय में ये हमको ये सिखाने की कोशिश करेंगी कि अगर हार्ट और लंग दोनों बंद हो जाएं किसी व्यक्ति के, तो उसको कैसे वापस लाया जाए। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि 3 मिनट के अंदर कोई भी डॉक्टर आपके पास नहीं पहुंच सकता, तो हमारे लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम सब इसको सीखें। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर दीप्ति माला अग्रवाल का कि वो यहाँ आई और अपना इतना समय उन्होंने हमारे लिए दिया। मैडम दीप्ति माला अग्रवाल। प्राथमिक उपचार एवं मूल जीवन सहायक विधि। मैंने इसी जगह पर ये मैं 4th कोर्स कंडक्ट कर रही हूँ। आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही अटेंड किया है? नहीं, स्टाफ चेंज हो गया होगा सर, चेंज होता रहता है। ओके। फर्स्ट एड से मतलब, प्राथमिक उपचार से मतलब कोई भी स्थिति ऐसी बनती है इमरजेंसी की, आपातजनक, कहीं भी, घर पर, दफ्तर में, होटल में, अस्पताल, कहीं भी, अस्पताल से बाहर, तो हमेशा जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो एक लेमैन होता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हर इंसान, एवरी सिटीजन इज अ लाइफ सेवर। अभी तक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के कोर्सेज थे, BLS एंड ACLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। We have been following those since years and years and years, and I have been teaching BLS in the city of Agra since 2004. I started my practice here since 2000, and I have been associated with Pushpanjali Hospital since its inception, day 1. Now in 2017, our Indian Society of Anesthesiology, I am a trained anesthesiologist into critical care. So Indian Society of Anesthesiologists, they have come up with our Indian guidelines beautifully. And now the course is, they have come up with calls. Compression only life support. This is for the lay person. What we'll be talking here, and we'll try and learn. Second is the BCLS, Basic Cardiac Life Support. That is for the medicos and paramedicos, but when they are catering to a patient outside the hospital. That is the cardiac resuscitation which is performed inside the hospital. For a lay person, if anything unexpected happens in this room, what will we do? Early recognition and activation, early chest compression, and the early transfer of the victim to the hospital. These are the various algorithms which have to be followed. I'll be just talking about. These were published in the Indian Journal of Anesthesia in 2017 November. You observe a person suddenly collapsing in front of you, or everybody can see, or somebody is already collapsed when you saw him or her for the first time. What will be your first response? Early recognition and activation. How will we recognize the criticality of the situation? First dictum in any emergency is, we have to ensure our safety. First, ensure the safety of the place for yourself and for the victim, and then we start with the resuscitation. Now you check for the response. How will you check for the response? You will tap on the shoulder. Are you okay? क्या आप ठीक हैं? Then you have to check for the response. What is responsive and what is non-responsive? उसके शरीर में यदि कोई भी हरकत है तो इसका ये जीवन चिन्ह है, और यदि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो ये जीवन चिन्ह नहीं है। यदि वो रिस्पॉन्सिव है तो हम उसे ऑब्जर्व करते हुए नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी तक ले जाएंगे, और यदि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उस स्थिति में हमें क्या करना है? वी हैव टू कॉल फॉर हेल्प, वी हैव टू
कॉल ऑन द इमरजेंसी नंबर विच एवर इज अवेलेबल। आपके सिनेरियो में शायद डॉक्टर साहब का होता होगा, एंड देन डॉक्टर साहब विल कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल विच केटर्स टू दीज इमरजेंसी सर्विसेज। मोबाइल पर हमें क्या सूचना देनी है? Now the scenario which we have to imagine is not inside this room. You are on the road, you are in a train, you can be anywhere. Now from there you are the person who is trying to help one victim. हमने क्या कम्युनिकेट करना है अपनी फ़ोन कॉल पे, क्योंकि जो हमारी हेल्प के लिए आएगा those people should be prepared and equipped. कॉल के दौरान हमें क्या कहना है? अपनी पहचान बतानी है, अपने स्थान की पहचान बतानी है, व्यक्तिग्रस्त के बारे में बताना है, कितने पीड़ित हैं, उनका आयु, लिंग, क्या दिक्कत है, और बचाव दल की संख्या हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतना कर लेने के बाद अगर शरीर में कोई हरकत नहीं है तो वी हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट विद द चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी, और आप सब अपने हाथ से खुद चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, तभी ये हमें करना आएगा। हमें 30 चेस्ट कंप्रेशंस करने हैं। 30 चेस्ट कंप्रेशंस 5 साइकिल्स हैं। 30:2 इज द रेशियो। वी गिव 30 चेस्ट कंप्रेशंस एंड 2 ब्रेथ। 30:2:32। सो इन 1 मिनट, in 60 seconds we give 120 chest compressions। 30 का साइकिल इसलिए है बिकॉज CPR परफॉर्म करते समय वन गेट्स टायर्ड, सो अकेले हम नहीं कर पाएंगे, वी विल नीड हेल्प, वी नीड पीपल अराउंड हु आर ट्रेन्ड और हु कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल देम, एंड देन वी बिगिन विद द chest compression. Now what is the placement of the hand? You can see, keep heel of hand 2 fingers above the xiphoid process. What is xiphoid process? जो हमारी छाती की सबसे निचली हड्डी है, जिसके नीचे पेट शुरू होता है। सब अपनी अपनी फील कर लीजिए अपने अपने बॉडी पर, जो सबसे नीचे हिस्सा फील हो रहा है उस पर हम 2 उंगली रखेंगे, और उसके ऊपर जो जगह है उस पर हम दोनों हाथ यूँ रखेंगे। पहले आप पोजीशन जहाँ रखिए, देखिए, फिर मैं आपको अभी स्क्रीन पर देखिए किस तरह हाथ रखे हैं। हील ऑफ हैंड 2 fingers above the xiphoid process, elbows straight, shoulders above the victim's chest, fingers interlocked। हमें पुश करना है 5 to 6 centimeter, compress at a speed of 120 times per minute। Allow the complete chest recoil between compression without lifting the hand from the chest। जो कंप्रेशन है उसके बाद जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो हाथ को छाती से उठाना नहीं है, हाथ वहीं रखने हैं, बट चेस्ट जो कंप्रेस किया है उसको रिकॉइलिंग का भी टाइम देना है, बिकॉज दैट रिकॉइलिंग इज द टाइम व्हेन सर्कुलेशन, इफ इट गेट्स इनिशिएटेड, इट विल कम इनटू द फ्लो। अगर स्पीड हम सही नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वी विल नॉट गिव द टाइम फॉर द सर्कुलेशन टू गेट एक्टिवेटेड। एंड डू नॉट स्टॉप चेस्ट कंप्रेशंस अननेसेसरली। बीच में हमें रोकना नहीं है, साथ में चाहे किसी से बात कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं हेल्प के लिए, चेस्ट कंप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलर हमें करते ही रहनी है। 30 compressions in 1 set। Chant loudly 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 30। Maintain the speed and number of chest compressions. If there are more than one person, interchange every 5 cycles। Then you check for the response। फिर प्रतिक्रिया की जांच करिए 5 साइकिल के बाद। यदि विक्टिम कोई भी मूवमेंट कर रहा है, कोई कफिंग कर रहा है, आवाज़ देने की कोशिश, कुछ आवाज़ निकाल रहा है, शरीर में हरकत है, इसका मतलब उसका हार्ट और ब्रीदिंग दोनों चल रही हैं। रिस्पॉन्सिव है तो वी विल स्टॉप द चेस्ट कंप्रेशन, और स्टिल ही इज नॉट रिस्पॉन्सिव, वी हैव टू कंटिन्यू विद द चेस्ट कंप्रेशन टिल आइदर द मेडिकल हेल्प अराइव्स और वी रीच द हॉस्पिटल। This is the entire algorithm. How long to continue CPR?
या अभी इस बारे में मैंने आपको बताया। रिस्पॉन्सिव विक्टिम क्या होता है? जिसका शरीर थोड़ा भी हिलने लगे, वो खांसी करने लगे और उसकी आवाज़ निकलने लगे, थोड़ा ऐसे। ऐसी स्थिति में फिर जब हम पेशेंट को, विक्टिम को शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, इट हैज़ टू बी इन द लैटरल पोजीशन। लैटरल से मतलब करवट। एक शीट यहाँ नीचे लग जाएगी डॉक्टर साहब, ये CPR ज़मीन पे ही हो पाएगा। इट हैज़ टू बी इन द लैटरल पोजीशन, वो मैं आपको भी बना के बताऊंगी। CPR किस स्थिति में शुरू नहीं करना है, हमें चेस्ट कंप्रेशन करना है या नहीं करना है, इसका ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्थिति में नहीं करना है? पहला, यदि सीन सेफ नहीं है, डोंट डू इट, अपनी लाइफ रिस्क नहीं डालनी है। पेशेंट रिस्पॉन्सिव है तब नहीं करना है। विक्टिम की बॉडी इतनी स्टिफ हो चुकी है, कई बार होता है, पता लगता है रात में सोए थे सुबह उठे नहीं, कई बार हो जाता है घरों में बड़े बुजुर्गों के साथ या किसी के साथ भी, तो सुबह आपने देखा और बॉडी बिल्कुल अकड़ी हुई है अगर, तो CPR करने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो इरिवर्सिबल चेंजेस बॉडी में हो चुके हैं, बॉडी स्टिफ हो गई है, जिसको राइगर मॉर्टिस कहते हैं, तो then it's of no use. So these are the CPR guidelines. I will not say thank you, I will continue. Can we have this on the floor? इसके साथ ही मैं बात करूंगी और किन्हीं भी स्थितियों में, कोई भी इमरजेंसी की स्थिति में हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जैसे आपके यहाँ कोई बैठ के खाना खा रहे हैं, कई बार होता है खाते खाते यहाँ पर कुछ फंस जाता है। हमारे पास कई पेशेंट्स भी आते हैं, फिश का या कुछ फंस जाता है। उस सिंपल छोटे से फंसने से जो हमारा एयरवे है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और कई बार उससे ऑन टेबल, आपने सुना होगा कभी, लंच टेबल, डाइनिंग टेबल पे ही एकदम मृत्यु हो गई। उससे एयरवे हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, हमें एयरवे को रिलीव करना है। उसके लिए होता है हेमलिक मैन्यूवर, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी। एनी गर्ल कैन कम। द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसीजर हेमलिक मैन्यूवर इज इट कैन बी डन on a patient lying down, victim sitting or standing. You have to bear hug the victim from behind like this and place the hand, जहाँ मैंने आपको जो जिफॉइड बताया ना, जहाँ पर हमारी छाती खत्म हो रही है और पेट शुरू हो रहा है, उस पार्ट पर हाथों की ऐसे हमें मुट्ठी बनानी है यूं, और इसे हमें यूं पुश करना है बैकवर्ड एंड अपवर्ड। इस मैन्यूवर से ये चीज़ निकल आती है। थैंक यू। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है इट गेट्स रिलीव्ड। सच अ सिंपल टेक्निक, अगर लाइफ सेविंग हो जाए हमारे ज्ञान से तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों के साथ बहुत बार दिक्कत होती है, छोटे बच्चे हैं, दूध पीने के बाद चोक हो जाता है, माएँ जब बच्चों को दूध पिलाती हैं। ऐसी स्थिति में जैसे हमने कहा इसको लेटे में भी कर सकते हैं, तो हम उसको उल्टा करके, जैसे मूवीज़ में भी दिखाते हैं बच्चे को ऐसा मारते हैं, तो गलत नहीं दिखाते हैं, ऐसा करने से भी ये एयरवे जो है वो रिलीव हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द हेमलिक मैन्यूवर। ये मैंने बात की अभी चोकिंग की। अगर आप और इंटरेस्टेड हैं तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बर्न्स है, हम लोग किचन में कुकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यदि गरम तेल का छींटा पड़ गया या थोड़ा भी कुछ हमें, हमारा जल गया हाथ, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? पानी। नो नीड टू वेस्ट टाइम सर्चिंग फॉर कोल्ड वाटर ऑल्सो, neither for ice, simple tap water will do. But what is important is हम उसको कम देर के लिए रखते हैं। टैप में ऐसे खड़े रहेंगे तो किसी में भी पेशेंस नहीं होती है। टैप वाटर में हाथ डालकर टेक इट इन अ टम्बलर और बकेट, बैठ जाइए एंड इमर्स दैट अफेक्टेड पार्ट इनटू द वाटर एंड कीप इट फॉर एज लॉन्ग एज वहाँ से बर्निंग सेंसेशन नहीं चली जाती है। That can take up to 15 to 20 minutes to at times half an hour. अगर हम शुरू में इतना टाइम लगा देंगे तो बाद में ब्लिस्टर्स नहीं बनते हैं। You would have seen कई बार बर्न्स केसेस में बाद में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, और किसी के ब्लिस्टर्स बन जाएं तो उन्हें फोड़ना नहीं है, बिकॉज वो एस्टेराइल से होगा, दैट विल इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन इनटू इट। तो हमारा पर्पस ये है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को हेल्प करना चाहें तो करें, एटलीस्ट किसी की प्रॉब्लम को बढ़ाए नहीं। ये बात हो गई बर्न्स की।
ड्राउनिंग का केस, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, कोई यदि सडनली ड्राउन करने लगे तो हमें क्या करना है, हाउ टू अप्रोच अ ड्राउनिंग विक्टिम। जैसे भी आपके पास साधन है, इफ समवन इज अ गुड स्विमर, लोग कूद के उसको बचा लाते हैं। इफ यू आर नॉट अ गुड स्विमर, तब भी आप हेल्प कर सकते हैं। यू कैन थ्रो अ रोप, लॉन्ग स्टिक, एनीथिंग। उसको जब हमने लेकर आना है, यदि स्विम करके लेकर आ रहे हैं तो हमेशा उसको हमने ऐसे उठाकर लाना है, एक हाथ से। बॉडी उसकी फ्लोट करेगी और एक हाथ सिर के नीचे, एंड देन यू स्विम और डू वॉट एवर विद योर हैंड एंड यू कैन ब्रिंग हिम टू द साइड। But in this case, what the difference is, you cannot start the chest compression immediately drowned victim में if he is not responsive. Why? Because उसके lungs में पानी जा चुका है। तो first उस पानी को हमें निकालना है, then अगर कोई चीज़ खाली है तभी उसके अंदर हम कुछ डाल, then only chest compression will become effective. तो पानी निकालेंगे कैसे? lateral position से। आपने स्नेक बाइट के केसेस सुने होंगे, हमारे पास बहुत आते हैं। स्नेक बाइट के केसेस ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होते हैं या जहाँ भी लोग ओपन स्पेसेस में सोते हैं। आजकल बरसात है तो केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। मोस्टली लोग वाईगीर के पास जाते हैं। हर विलेज में एक वाईगीर होता है जो स्नेक मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होता है। गलत नहीं है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, ठीक है। जो स्नेक बाइट है, 95% ऑफ द स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस। 95% आर नॉन पॉइजनस। तो अगर काट भी लिया है तो हमें कुछ होना ही नहीं था। और अगर पॉइजनस ने काटा है तो वाईगीर कैन नॉट हेल्प यू। तो स्नेक बाइट में भी हमें क्या ध्यान रखना है, इफ द स्नेक इज पॉइजनस देयर बी अ कंप्लेंट। उसको शरीर में कमजोरी आने लगेगी। जिसको नहीं मालूम है वो कहेगा डर गया है, घबरा गया है, सो जा सो जा। इतनी शरीर में कमजोरी आ जाती है। स्नेक्स फाउंड इन अवर एरिया दे ऑल आर न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक मीन्स हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो एक्ट करते हैं, जिससे हमारी मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे पैरालाइज हो जाती हैं, आंख बंद होने लगती है, जिसको मेडिकली हम कहते हैं टोसिस, नहीं तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास आता है न्यूरो की प्रॉब्लम लेके, और फिर जब हम लोग देखते हैं तो हम उसको स्नेक बाइट डायग्नोज कर देते हैं। हम तो इमरजेंसी डील करते हैं, नॉट ओपीडी। और वो उससे अगर उसको टाइमली टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड इज द फर्स्ट सिम्टम इन एनी पॉइजनस स्नेक बाइट, उस पर हमें अलर्ट हो जाना है एंड वी शुड रीच द नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी। एंटी स्नेक विनम्स अवेलेबल हैं, वो लगते ही विद इन 24 आवर्स पेशेंट रिस्पॉन्स। अगर उसको टाइमली हेल्प नहीं मिलती है तो जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पैरालाइज्ड है तो ब्रीदिंग रुक जाती है, और ब्रीदिंग रुकने से मौत हो जाती है। तो आज के टाइम में सांप कटे से मौत हो जाए तो बहुत दुख की बात है, पर अभी भी हो जाती हैं। हमारे पास बहुत साल हो गए, 10 साल पहले भरतपुर के पास कौन सी जगह है, वहाँ मंदिर के पुजारी थे, उनको काट लिया था। उसका जो ब्रदर था वो CPR ट्रेंड था, वो समझ गया, वो CPR करता हुआ वहाँ से हमारे हॉस्पिटल तक लेकर आए थे। वो पेशेंट 1 मंथ वेंटिलेटर पे रहा था, 1 महीना, उसके बाद वो चल कर गया था। सो द थिंग इज कि इफ थिंग्स मैनेज टाइमली दे कैन बी ट्रीटेड। अब मैं आपको CPR का एक बेसिक बता देती हूँ। पहले पोजीशन हमेशा यूँ होगी, कहीं भी हमें CPR करना पड़ जाए विक्टिम को, अगर हम अस्पताल में नहीं हैं, है ना, हम उसको फ्लोर पे ले लें। अभी कुछ वर्ष पहले माइकल जैक्सन का निधन हुआ था, उनके CPR को लेके क्या कंट्रोवर्सी थी। उनका CPR डनलप के बेड में हो गया था, और सब 5 स्टार होटल्स में डनलप ही होता है। तो इन केस कोई इमरजेंसी हो, प्लीज़ चेक द विक्टिम ऑन द फ्लोर। जैसे ये भी जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, दे आर हार्ड बेड्स, दे आर डिजाइंड फॉर इट। उसके बाद जैसे मैंने पोजीशन आपको बताई, यहाँ से दिस इज द जिफॉइड प्रोसेस, इससे 2 फिंगर ऊपर, 1 हैंड हियर, दूसरा हियर। यू हैव टू बी लाइक दिस। आप मेरा पोजीशन देख रहे हैं, शोल्डर्स, एल्बोज एंड माई रिस्ट इज इन स्ट्रेट लाइन। You have to be over the patient like this, and then you have to press. You have to count 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. 30, 30, 30, 5 times, 120 per minute. 60 seconds में 120, डबल हर सेकेंड में 2. उसके बाद एयरवे मेंटेनेंस के लिए हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट. बहुत लोग खराटे लेते हैं, आपने देखा होगा, स्नोरिंग करते हैं. व्हाट इज स्नोरिंग? इट इज़ पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. आप उस सोते हुए की थोड़ी यूं कर दीजिए, उसकी खराट रुक जाएगी. सो जैसे हमारे आईसीयू में जो पेशेंट स्नोर करते हैं, है ना, वी पुट इन एयरवेज एंड ऑल दोस. सो आई ऑलवेज थिंक कि अपने घर में ले रहा होता तो इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता. बट फॉर अस इट्स एन इमरजेंसी इफ समबडी इज स्नोरिंग, बिकॉज दैट इज़ अ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन. जो लोग ज़्यादा स्नोर करते हैं, आपने देखा होगा, अगर ऑब्जर्व किया हो, नहीं तो करना किसी को सोते को, वो इतनी खराटों की आवाज़ बढ़ जाएगी, उसकी नींद एकदम जग जाती है. क्यों जग जाती है? वो ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला था, तो उसके माइंड ने उसको जगा दिया. देयर इज़ अ थिंग लाइक ओबीस हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम. जो लोग मोटे होते हैं वो बैठे बैठे सो जाते हैं ना, और कई बार वो ऐसे में ही चले जाते हैं और कोई रियलाइज़ नहीं करता है. सो दिस इज़ द हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट. किसी भी इमरजेंसी में कई बार रुकी हुई जो ब्रीदिंग है, केवल हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट से भी ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है. वो क्यों हो जाती है? जब हम गर्दन को यूँ रखते हैं तो जो हमारी टंग है वो हमारी पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से पीछे जाके अटक जाती है, तो दैट पैसेज गेट्स क्लोज्ड, एंड द मोमेंट यू डू इट लाइक दिस, दैट पैसेज ओपन्स अप. आई विल टेल द रिकवरी पोजीशन. आई वांट वन बॉय वॉलंटियर फॉर दैट. कोई भी एक आके यहाँ लेट जाए. हमने जिसको चेस्ट कंप्रेशन दे दिया और ये रिस्पॉन्सिव हो गया, इसने कोई हरकत कर दी, अब हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना है, तो हम कैसे लेकर जाएंगे? इनका हाथ इधर सीधा करिए. ये वाला हाथ हमने किया यूं, ये हाथ पकड़ा, 1 मिनट आप हटो, ये हाथ पकड़ा और ये इनका ये बदला, इसको हमने यूं पलट दिया. ये चीज़ अकेला आदमी कर सकता है. इस पैर को हमने मोड़ के इनके पेट से लगा लो, पेट से लगा दिया. ये अब बॉडी का वेट ऐसा हो गया है कि ही विल रिमेन लाइक दिस, और इसको हमने हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट कर दिया. और इस हाथ को इधर रखो, इसको उसके नीचे, यूं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट. दिस इज कॉल्ड द रिकवरी पोजीशन. इस पोजीशन का क्या फ़ायदा है? एक तो अब ये गिरेंगे नहीं, सेल्फ पोजीशन हो गई है. दूसरा, इस पोजीशन में यदि इन्हें वॉमिट आती है तो जो वॉमिटस है वो अंदर लंग्स में नहीं जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा. बहुत सारे केसेस अनकॉन्शियसनेस के, वो पार्ट तो डील हो जाता है, वो घर से ही एस्पिरेट करके आते हैं. एस्पिरेशन मीन्स दैट वॉमिटस हैज़, ओके थैंक यू, दैट वॉमिटस हैज़ गॉन इनटू द लंग्स. So all these are the precautionary. I would like each one to come and do the chest compression, and simultaneously if there are any questions, those can be addressed.